ایک سبب ہے، ساری زندگی ہماری نظر سبب پہ رہتی ہے۔ کھانا سبب ہے پیٹ بھرنے کا، پانی سبب ہے پیاس بجھانے کا، سواری سبب ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، لباس سبب ہے بدن کو ڈھانکنے کا۔ ایک سبب ہے، ساری عمر ہماری نظر سبب پہ رہے گی، سبب پہ رہتی ہے، اور ہم سبب کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ سبب بہت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سبب ہے، بچہ ہمیشہ اسباب کے ساتھ چلتا ہے۔ پوچھا رب کے معنی کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلے جس چیز پہ نظر جائے، جہاں نظر جائے، جس چیز پہ نظر جائے اور جہاں نظر جائے اس کو رب کہتے ہیں۔ بچے کی پہلی نظر ماں پہ جاتی ہے، پیاس، کھانا پینا، زندگی، اسباب، بچے کی پہلی نظر ماں پہ جاتی ہے۔ بچے کا پہلا نظام ماں پہ ہے، اور اسے پہلے دن سے پتا ہے کہ یہی میرا سبب ہے۔ گرمی، سردی، بارش، طوفان، بھوک، پیاس، میرا سبب یہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے یہ سارے اسباب بنائے اور مسبب الاسباب کو چھپا دیا۔ عجیب نظام ہے۔ سبب نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے کہ پیاس بجھاتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، میں پیاس بجھاتا ہوں۔ کھانا نظر آتا ہے کہ کھانا بھوک مٹاتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، بھوک تو میں مٹاتا ہوں۔ لباس تن ڈھانپتا ہے، بندے کی ضروریات کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ سارے میرے نظام ہے اور میں چلا رہا ہوں، وہ نظر نہیں آتا۔ نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا، یہ حیرانی نہیں جاتی، وہ نظر نہیں آتا۔ پھر کیا کیا کہ مجھے تلاش کرو، یہ تلاش کرو کہ میں تمہیں نظر آؤں اور میری قدرت تمہیں نظر آئے، میرا نظام تمہاری آنکھوں کے سامنے نظر آئے، مجھے تلاش کرو۔ عجیب نظام ہے۔ دیکھیں، جنت اس نعمت کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، جنابت اس ناپاکی کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، نظر نہ آئے۔ جنون اس ماوراء العقل کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے۔ مجنون بعض اوقات ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد حرکتوں سے پتہ چلتا ہے تو پاگل تھا، مجنون ہے۔ زندگی کے سارے وسائل، سارے اسباب اور سارے نظام میں میرا رب نظر نہیں آتا اور کہتا ہے میری تلاش کرو، میری تلاش کرو، میری تلاش کرو، اور میری تلاش میں پھرو، مجھے ڈھونڈو، مجھے ڈھونڈو۔ کہنے لگے مجھے کوئی ولایت کا راز بتا دیں، فرمایا جو کھا، جو پی، جو سو، کہے نیند مجھے اللہ کی طرف سے آئی، کھانا اللہ کھانا تو پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ بھرے گا، پیاس تو پانی تو پیاس نہیں بجھائے گا، اللہ بجھائے گا، سواری تو مجھے منزل تک نہیں پہنچائے گی، اللہ پہنچائے گی۔ کہا پہلے یہ بول کھوکھلے نظر آئیں گے، یہ بول نظر آئیں گے، ان بولوں میں کوئی وجود نظر نہیں آئے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا ان بولوں میں طاقت آئے گی، اور اللہ اپنی پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ آنکھوں سے نظر آئے گا اس کی قدرت کہ واقعی یہ سب اللہ سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے، اور یہ سب اللہ کے امر سے ہے۔ پھر قدرت سے نظر آئے گا، پھر قدرت سے نظر آئے گا، پہلے سے بول نظر آئیں گے، کیونکہ اسباب کی دنیا ہے۔ پہلے دن سے ہمیں مسبب الاسباب نظر نہیں آیا، اسباب نظر آیا، ماں نظر آئی، معاون نظر آئے، بچے کو مارا تو اماں، پانی تو اماں، پیاس تو اماں، دھوپ تو اماں، اسے ایک ہستی نظر آئی، ماں کی شکل میں یا بہن بھائیوں کی شکل میں
या कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाली खिदमत आया की शक्ल में, उससे असबाब नजर आए, आज तक यही असबाब नजर आए, उससे मुसब्बिबुल असबाब नजर ही नहीं आए, नजर ही नहीं आए। मुसब्बिबुल असबाब उसको नजर ही नहीं। वो जब शऊर की दुनिया में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कोई अल्लाह है, कोई ऐसी हस्ती है जो मेरी निजाम को चला रही है, कोई ऐसी हस्ती है जो मेरी बिगड़ी बना रही है, कोई ऐसी हस्ती है जो मैं चाहता हूं तो वो चाह लेता है तो हो जाता है, और जो मैं नहीं चाहता तो नहीं होता। कोई ऐसा निजाम है, लेकिन ये भी सबको नहीं मिलता। वो जो ऐसे घराने में आंख खोले जहां अल्लाह के वजूद का, इस बात का तस्करा हो, कमली वाले का तस्करा हो, वरना सारी जिंदगी उसकी जुबान पे एक चीज के असबाब, कायनात का निजाम, ये सब यही होता है, और इसी से आंखों से नजर आ रहा है, और इसी से कायनात का वजूद मिल रहा है, ये सब कुछ होता है। भाई इसको लाइट बंद करवा। ये सब कुछ उसकी आंखें जो देख रही हैं ना, आंखें देख रही हैं। आंखों ने देखा कि छुरी काटती है, सारी उम्र यही देखा। मेरे अल्लाह ने कहा नहीं, यही छुरी इस्माइल को नहीं काटेगी, यही छुरी मेंढे को काटेगी। बहुत जोर से छुरी चलाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, छुरी ने नहीं काटा। मालूम हुआ कि छुरी के अंदर काटने की सिफत कहीं ताकत और जगह से है। असबाब तो यही बता रहे कि छुरी काटती है, निजाम तो यही बता रहा कि छुरी काटती है। असबाब तो यही बता रहा, निजाम तो यही बता रहा। पानी डिबोता है, सारा दुनिया यही कहती है, और है भी ऐसी। मूसा अलैहिस्सलाम की सारे के सारे साथियों को और उनके साथ चलते लश्कर को अल्लाह ने बचाया, और फिरौन के 14 से 18 लाख के लश्कर को उसी में अल्लाह ने डिबोया। फिर डिबोने के बाद एक फिरौन की लाश को अल्लाह ने हजारों साल से जिंदा रखा, जिसे मैं अभी मिस्र में देख के आया हूं। पानी डिबोता है, छुरी काटती है, सारी उम्र यही देखा। अपनी आंखों से देखा कि आग जलाती है, और आग से जल जाती है हर चीज, आग जलाती है। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और गार में गया, और उस जगह गया जहां निमरूद ने आग इकट्ठी की थी, इतनी जलाई थी कि ऊपर से परिंदा गुजरता था, जल के नीचे गिर जाता था, और ऊपर पहाड़ के एक झूला बनाया था। आपको झूले से बांधा, फिर झूला दिया। जब झूला आग की तरफ गया, रस्से काट दिए, सीधा आग में गए, और अमर हुआ कि हम चाहें तो जलाए, हम ना चाहें तो ना जलाए। सारी उम्र हमने असबाब को देखा, और असबाब से पलना देखा, असबाब से जलना देखा, असबाब से पलना देखा, असबाब से पीना और सैराब होना देखा, और असबाब से पेट भरना। ये सारी उम्र हमने असबाब ही देखे हैं, असबाब ही देखे हैं। सारी उम्र असबाब देखे हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानो अंबिया कराम को इसलिए भेजते थे, इन्हें जाके बताओ जिन असबाब तुम्हारी जिन असबाब पे नजर है, इनके पीछे एक और ताकत है, एक और कुव्वत है, वो तुम्हें नजर नहीं आती। मैंने बचपन में अम्मा ने फरमाया कुछ चीज बाजार से ले आ, तो मुझे सीटियों की आवाज आई। बच्चे इकट्ठे छोटे से थे, मैं कोई 8-10 साल का होऊंगा अंदाजा। देखा कि पुतलियों का तमाशा हो रहा। मैं कहता हूं आज मैं देखूं तो सही, वो तो पता नहीं अब तो खत्म हो गया पुतलियों के तमाशे। वो एक छोटी छोटी मजस्मे थे, और उधर से बंदा सीटियां बजाता था, सीटियां बजा के और वो मजस्मे हिल रहे थे। मैं सोचने लगा ये कैसे हिलते हैं। पता चला कि नजर ना आने वाली तारें हैं, उन तारों के साथ वो हिलाते हैं और वो हिलते हैं। हम ये समझते हैं कि ये सारा निजाम खुद ब खुद ऐसे हिल रहा, कहीं तारे पीछे से आ रही हैं जो हमें नजर नहीं आ रहा। रमजान की घड़ियां, रमजान के लिए जमा होना,
किसी फकीर का अपने आप को सपुर्द करना, अमाल की दुनिया में यकसू होना, उसी मुसब्बिबुल असबाब की तलाश है, उसी की तलाश है। और सारी उम्र उसी की तलाश में सरगर्दान फिरता फिरता फिरता, ठोकरें खाता खाता, तलाश न कर सका, मौत आ गई। लेकिन अल्लाह पाक जल्ल शानहू कल कला जुनैद बगदादी, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ा करेंगे। या अल्लाह इनका मकाम तो वो है, ये तो वो है। फरमाया ये तलाश करके मुझे पा चुके थे, इन्होंने तलाश किया पा ना सके। मंजिल एक, राहें एक, जज्बे एक, रास्ते एक, लिहाजा एक ही सफ में खड़े हो जाएंगे। आप तलाश के लिए घर से निकले हैं। रमजान की घड़ियों में सारी तलाश हो रही है कि अल्लाह सारी उम्र तो हमने सबब देखे हैं, हमने आग से जलना, हमने पानी से प्यास का बुझना, हमने खाने से पेट का भरना, हमने छुरी से काटना, हमने सारा कुछ ये देखा है। फिर अल्लाह पाक ने आंखों से दिखाया, मूसा अपने असा को जमीन पे फेंके। पहले पूछा इस असा के क्या फायदे हैं? मैं कुरान का वाकया बयान कर रहा हूं। या अल्लाह पत्ते झाड़ता हूं, टेक लगाता हूं, बकरियां चराता हूं, ये करता हूं, असा सारा नफामंद है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी थी उससे नफे ही नफे हैं। पर मैं इसको जमीन पे फेंके, तो जब जमीन पे फेंका एक बहुत बड़ा सांप बन गया। अब फरमाए इसको पकड़े, मूसा हट रहे, हत्ता के बाज रिवायात में कि हाथ पे कपड़ा बांधा, मैं नहीं इसको हाथ लगाएं। अल्लाह पाक ने सबब को तोड़ के दिखाना था। जब यूं हाथ लगा वो असा बन गया, वो अजदहा बहुत बड़ा सांप एक पल में खत्म हो गया, एक पल में खत्म हो गया, एक पल में खत्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने दिखाना था, देखो सारी जिंदगी तुम जिस सबब के अंदर खैर देख रहे हो, मैं चाहूं उसी असा को तुम्हारे लिए अजदहा बना दूं, मैं चाहूं उसी अजदहा को तुम्हारे लिए असा बना दूं। तुम जिस चीज में खैर की तलाश कर रहे हो, उस खैर में मैं शर को दाखिल कर दूं, और जिसमें तुम शर तलाश कर रहे हो उसमें खैर दाखिल कर दूं। तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। मैं उस खैर को, मैं रातें तुम्हें नजर आ रही, मैं रात को दिन बना सकता हूं, मैं खैर में शर दाखिल कर सकता हूं, बस मुझे समझो, मेरी तलाश करो। सारी उम्र असबाब में अटके रहे, अल्लाह को मुत्तकासुर, सारी उम्र असबाब में अटके रहे। माल होगा तो काम बनेगा, पैसा होगा तो काम बनेगा, दौलत होगी तो काम बनेगा। फिर क्यों कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी सारी जिंदगी की माल दौलत ले ले, मुझे बचा दे? कहता है मेरे बस में नहीं है। और थोड़ी देर के बाद आके कहता है अफसोस की खबर है, आपका दोस्त, आपका प्यारा फौत हो गया है। जितना पैसा लगना है मुझे, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा अजीज बच जाए, यानी असबाब सारे लगा दे। वो कहते हैं नहीं, असबाब मेरे बस में नहीं, यहां मुसब्बिबुल असबाब के फैसले हैं। मुसब्बिबुल असबाब चाहेगा तो फैसले होंगे, वरना नहीं होंगे। ये फैसले कैसे होंगे और इसकी तलाश कैसे होगी, और हमारी नजर वहां से हट के यहां कैसे आएगी? ये सारी कोशिश, ये सारा तस्बीह, ये सारा तस्बीह खाना, ये हमारी पहले दिन से, बचपन से लेकर मौत तक का सारा सफर इसी सबब से मुसब्बिबुल असबाब पे आने का सफर है कि हमारी नजर जहां है वो हमारा दुख है, वो हमारा फरेब है। जहां हमें नजर नहीं आ रहा, असल हकीकत वही है। नजर आ रहा है कि खाना पेट भर रहा, वही खाना अल्लाह बीमारी बना के दिखा देता है। नजर आ रहा कि पानी प्यास बुझा रहा, उसी पानी को पेट में बंद कर दे और पेट फूल जाए, अल्लाह दिखाता है। कितने वाकयात मेरे पास हैं। अभी ताजा वाकया कुछ अर्सा पहला हुआ कि एक बंदे के गले में मछली का कांटा फंस गया और मर गया। उसकी लज्जतों में अल्लाह ने चाहा कि नहीं, अब इस कांटे को हुक्म है कि यहां फंसा रहे। हत्ता के हदीस में यहां तक आता है कि हर लुकमा अल्लाह से हुक्म मांगता है, हर लुकमा।
یا اللہ میں اس کے لیے شفا بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں. ہر لقمہ اللہ سے حکم مانگتا ہے, اللہ سے امر مانگتا ہے, یا اللہ میں اس کے لیے شفا بن جاؤں یا بیماری بن جاؤں. ہر لقمہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ میں شفا بن جاؤں یا بیماری. اور فرمایا اگر اللہ چاہتا ہے تو وہی لقمہ اس کے لیے شفا بن جاتا ہے, اور اگر اللہ نہیں چاہتا وہی بیماری بن جاتا ہے, اور وہی لقمہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہنے لگا میں گیا تو گندم کا تھریشر لگا ہوا تھا, ذمہ دار وہاں ڈھیر لگا ہوا, وہاں ڈھیر لگا, بڑا ذمہ دار ہر تھریشر کے اوپر چکر لگا رہا تھا, ادھر جا رہا, ادھر جا رہا, ادھر جا رہا. تو میں نے ان سے کہا ملک صاحب عشر بھی دے دیا کریں. کہنے لگے یہ مدرسے والے آتے میں ان کو تھیلے گندم کے بھر کے دے دیتا ہوں. لیکن نہیں, عشر تول کے ہوتا ہے, جیسے زکوٰۃ ناپ کے تول کے, اسی طرح عشر تول کے ہوتا ہے. پوچھیں تولیں کہ میری زمین بارانی ہے, میری زمین کا پانی نہری ہے, ٹیوب ویل سے دیتا ہوں, کیسے, کون سی احکامات ہیں, اس کے مطابق میرا کتنا عشر ہے, نکال دیں. ہمیشہ مصیبتوں سے بچے رہیں گے, کیڑوں مکوڑوں سے, یہ زمین کا یہ فلاں یہ گھاٹے, اس سے بچے رہیں گے. اللہ پاک نسلوں میں رقبے زمینیں دے گا اور نسلوں میں رزق دولت دے گا. کہنے لگا آپ کو پتا تو ہے, میں دے دیتا ہوں. اس نے میری بات کو سنی انسنی کر دی. وہی کھڑے کھڑے ایک تنکا, تھریشر کا تنکا چھوٹا سا ہوتا ہے, ہلکا سا, یوں کرو یوں نکل آتا ہے. آپ کی آنکھ میں اڑتا تنکا آپ کی آنکھ میں بھی پڑا, میری آنکھ میں پڑا, کئی بار پڑا. تنکا یوں ملا تو آنکھ میں تھوڑی سی چبھن ہوئی, ایسے محسوس ہوا نکل گیا, لیکن ہلکی سی چبھن رہ گئی, ہلکی سی چبھن رہ گئی. پھر اس چبھن کو لیے کوئی کسی نے کہہ دیا کہ فلاں ڈراپ ڈالے, پھر وہ ڈراپ ڈالے, وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن آنکھ کی سرخی, کسی نے کہا کہ تنکا لگتا ہے اندر اٹک گیا ہے. آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آنکھ تے دیکھا تو تنکا نکال دیا. کہنے لگا تنکا نکل تو گیا ہے لیکن اندر تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا ہے, اب آنکھ زیادہ نہ کھولیں, یہ ڈراپ ڈالتے رہیں. لیکن تکلیف نہ گئی. پھر بڑے ڈاکٹر کے پاس, بڑے شہر کے پاس گئے, اس سے بڑے ڈاکٹر, حتیٰ کہ 10.5 لاکھ لگ گئے, اور وہ آنکھ انہوں نے نکال کے ربڑ اور پلاسٹک کی آنکھ ڈال دی. کہنے لگا میں گیا عیادت کرنے کے لیے, ملک صاحب کی عیادت کرنے گیا. عیادت کرنے کا جب میں گیا نا تو سمجھ گیا یہ بندہ تھا جس نے مجھے بات کہی تھی. کہنے لگا میں نے تیری بات نہیں مانی تھی, اور کہا میں نے اس کی بات کو سنی انسنی کر کے اسے اور باتوں میں لگا دیا. باتوں میں لگاتے لگاتے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی فصل کتنی ہوئی, اس نے کہا اتنی ہوئی. میں نے کہا بالفرض اگر عشر نکالتے تو میرے خیال میں مسئلے کے اعتبار سے اتنا بننا تھا, اتنا بننا تھا, اتنا بننا تھا. حساب کرتے کراتے 10.5 لاکھ پہ آ گئے ہم, پر وہاں 10.5 لاکھ جانا تھا, آنکھ نہیں جانی تھی. یہاں 10.5 لاکھ بھی گیا, آنکھ بھی گئی. سبب دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی کا کوئی سبق پانا چاہتے ہو تو 2 لفظوں میں ہے. پوچھا کیا؟ کہا مشاہدے کا انکار, غیب کا اقرار. یہ زندگی ہے, مشاہدے کا انکار, غیب کا اقرار, یہ زندگی ہے. مشاہدہ دیکھ رہا کہ زکوٰۃ سے, عشر سے میرا مال کم ہو رہا اور سود سے میرا مال بڑھ رہا. مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے. غیب کہتا ہے نہیں, سود تیری زندگی, تیرے مال, تیری نسلوں, تیرے سکون, تیری زندگی, تیرے چین کو کھا جائے گا. عشر, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات تیرے مال کو, تیری صحت کو, تیری عزت کو بڑھا جائے گا. مشاہدے کا انکار, غیب کا اقرار. یہ ساری عمر مسبب الاسباب کی تلاش ہے, یہ ساری عمر مسبب الاسباب کی تلاش ہے. ہم جو پڑھتے ہیں نا کہ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر, یہ ساری عمر اس کی تلاش ہے. مشاہدے کا انکار, آنکھوں سے نظر آ رہا کہ زکوٰۃ سے مال جا رہا, عشر سے مال جا رہا, صدقے سے مال جا رہا, فطرانے سے مال جا رہا,
अल्लाह की राहों में खर्च करने से माल जा रहा, आंखों से नजर आ रहा। सूद हराम, इन चीजों से माल आ रहा, आंखों से नजर आ रहा। लेकिन यहां अब मुशाहदे का इनकार करना है, आंखें जो देख रही उसका इनकार करना है और गैब का इकरार करना है। इस मुशाहदे के इनकार और गैब के इकरार के लिए अंदर बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़े साल लगते हैं, बड़ा वक्त लगता है, और फकीरों के पास घुटने टेकने पड़ते हैं, जूतियां घिसानी पड़ती हैं, और फिर इसके लिए रुलना पड़ता है, इसके लिए मन की चोटें, अंदर की चोटें खानी पड़ती हैं, फिर जाके अंदर बनता है कि हां मुशाहदे का इकरार यह है और गैब का इनकार यह है। फिर जाके बात बनती है। इन सच्ची राहों के आप सच्चे मुसाफिर बैठे हैं, इन सच्ची राहों के आप सच्चे मुसाफिर बैठे हैं, जो इन सच्ची राहों को, इन सच्चे रास्तों को लेके आप चले हैं। इन सच्ची राहों के आप सच्चे मुसाफिर बैठे हैं, जो आप इन सच्ची राहों को लेके चले हैं, सच्चे रास्तों को लेके चले हैं। आप एक मंजिल लेके आए हैं, उसकी तलाश में फिर रहे हैं। घर छोड़ा, घर का सुकून, घर की जिंदगी, घर की बादशाहत, घर की शहनशाहियत छोड़ के उन सच्ची राहों को लेके आए हैं। और मुशाहिदा क्या कहता है? यही रोजे घर रख सकते हैं, यही राहें घर हो सकती हैं। और गैब क्या कहता है? नहीं, अल्लाह के लिए हिजरत करना, अल्लाह के लिए घर बार छोड़ना, अल्लाह के लिए अपनी लज्जतों को तोड़ना, ये गैब कहता है, मुशाहिदा नहीं। ये मुशाहिदे का आपने इनकार किया है और गैब का इकरार किया है। ये गैब का इकरार किया है। और ये गैब है जो कहता है तस्बीह खाने जाके तरावियां पढ़, जो गैब है कहता है तस्बीह खाने जाके रोजे रख, जो गैब है कहते हैं तस्बीह खाने में जा, वहां तेरी रूह की दुनिया रूहानियत के कशकोल भरेंगे। ये गैब है, ये गैब है। इन गैब की राहों के आप राही हैं। कभी नागवारियां आ जाती हैं, कभी दिल पे सलवटें पड़ जाती हैं, कभी किसी से डांट पड़ जाती है, कभी किसी की ठोकर लग जाती है, कभी तबीयत के खिलाफ, कभी जज्बात के खिलाफ, कभी मन के खिलाफ। ये सारी चीजें सहते हुए आप मुशाहदे का इनकार कर रहे हैं और गैब का इकरार कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फतह और दुनिया के सबसे बड़े फातेह लोग हैं जो गैब का इकरार कर रहे हैं कि गैब ये है और इसका नाम गैब है और इसका नाम हकीकत है और इसका नाम सच्चाई है। अल्लाह के यहां आपका मकाम क्या होगा? सोचे तो सही। दुनिया कुछ कहे, दुनिया ना माने ना माने, हमने दुनिया को मनवाना नहीं लेकिन मुकाबला भी नहीं करना। दुनिया ना माने, अल्लाह के यहां मकाम क्या है? यह बंदा किन सच्चे जज्बों को लेके चल रहा, यह बंदा किन सच्ची राहों को लेके चल रहा। आप सोचें तो सही, आप गुमान तो करें, यह बंदा किन सच्ची राहों के लिए इसने अपना घर बार छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, अपने इलाके के निजाम को। तस्बीह खाने की तरफ इसका रुजू है, तस्बीह खाने की तरफ रुजू है। ये मुसब्बिबुल असबाब की तलाश में है। फिर एक वक्त आता है अल्लाह पाक इस यकीन को अंदर मजबूत करता है और अपनी कुदरत के मुशाहदे दिखाता है और कुदरत के कमाल दिखाता है और कुदरत कामला का यकीन दिखाता है। एक वक्त आता है, यह सफर जिंदगी का नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, इस सफर को जारी रखना है। इस सफर में जिंदगी है, इसमें रूह है, इसमें कामयाबी है, इसमें कमाल है, इसमें इज्जत और बरकत है, इसमें शान और शौकत है, इसमें वकार है। यही जिंदगी का सफर है, इसको ना छोड़ें। आप एक कामयाब सफर को लेके निकले हैं जहां रमजान के लिए घर बार छोड़ना रिवाजों से चला जाए। रमजान के कयाम के लिए तो काफले के काफले होते थे, रिवाजों से चला जाए। जो चीज रिवाजों से चली जाए, जिसका रिवाज खत्म हो जाए और वो रिवाजों में आने की कोशिश की जाए, अल्लाह के यहां उस बंदे की कीमत है, वकार है,
कदर है, इज्जत है और वजन है। जो चीज रिवाजों में नहीं है उसको रिवाजों में लाना, जो चीज रिवाजों में नहीं है उसको रिवाजों में लाना, इसमें फैसले करना, इसमें कोशिश करना, इसमें मेहनत करना और इसमें अपने आप को जमाना। आखिरी अशरा पूरे महीने के जो कयाम करने वाले हैं उनके लिए आखिरी अशरा बहुत बड़ी आजमाइश है। मेरी बात लिख लें। क्यों? गुज़िश्ता 20 दिन जितनी बड़ी कमाई कर ली है ना, अब उस कमाई को ज़ाय करने और उस कमाई को खत्म करने की आखिरी कोशिश का यह वक्त है कि ये कमाई इससे छीन लें। कोई तरीका ऐसा हो, कोई अंदाज ऐसा हो, इसका दिल टूट जाए, इसका अंदर टूट जाए और इसका दिल भर जाए, या इससे अदब छीन लें, या इससे कदर छीन लें, या इससे अजमत छीन। आखिरी अशरे में जिसने अपने अदब को, जिसने अपनी तलब को, जिसने अपनी अजमत को बाकी रखा, संभाल के चला, बस जिस वक्त ऐलान होगा ना कि सुबह ईद है, बस मिल गया सब कुछ, इसको ताजपोशियां हो गई। कुछ ना देखने के बाद भी इश्क की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। जिस्म निढाल, कमर निढाल, मजदूरियां कर रहा, मेहनतें कर रहा, सब कुछ करने के बाद तू कहते हैं रोजा है। देखो, एक वो रोजा भी है, उठा सो गया, फिर कोई बैठा थोड़ा सा इज्तिमाई अमल किया, फिर लेट गया, फिर टेक में चला गया। ये रोजा मुबारक है। एक वो रोजा है जो खिदमत वालों का रोजा है, एक वो रोजा है जो मजदूरी करने वालों का रोजा है, एक वो रोजा है जो मेहनत करने वालों का रोजा है। उस रोजे पे क्या मिलेगा सोचो तो सही। अभी तो मौसम ठंडा है, आपने 17 घंटे के रोजे अभी रखे हैं कुछ अर्सा पहले, चंद साल पहले। एक वो रोजे हब्स इतनी ज्यादा कि जिस्म का पानी खत्म हो गया, जिस्म अंदर से ऐसे टूटता है। पर जिस्म टूटे, मन टूटे, अंदर एहतजाज की सदाएं बुलंद हो। कहा ना एक कतरा जाएगा, ना एक दाना जाएगा। जब सब कतरा भी सामने पड़ा है, दाना भी सामने पड़ा है और घड़ियां देख रहा और कान इधर हैं, उन्होंने कहा जी इफ्तारी का वक्त हो गया। कहा बस चंद लम्हे बाकी हैं। अपने मन को समझाता है, मन को समझाता। आज मेरे सामने ना ऑन मोहम्मद रोजा खोल रहा था, यूं देखता था, कहने लगा वो हो गया। मैं कह नहीं, मैं क्या भूख लगी है? हाँ बहुत भूख लगी है। और मेरे सामने रोजे के लिए बेचैन बैठा हुआ है और मैं देख रहा हूं, मैं कि ये छोटा सा बच्चा बेचैन बैठा है। कौन सी ताकत है, कौन सा इश्क है जिसने इसको कहा है नहीं, अभी हुक्म नहीं हुआ। यही कायनात का सबसे बड़ा इश्क और आप दुनिया के सबसे बड़े आशिक हैं। हाँ, उस अनदेखे रब पे इतबार कर लिया, उस अनदेखे रब पे यकीन कर लिया। अनदेखे रब ने कहा अब नहीं खाना, हाथ हट गया। अनदेखे रब ने कहा अब खा लो, हाथ बढ़ गया। ये मश्क हो रही है मुसब्बिबुल अस्बाब की। और रोजेदार से बड़ा दुनिया में कोई आशिक नहीं है। किसी ने कहा कि इश्क की इंतहा, कहा रोजेदार। जो अनदेखे रब के अमर को मान रहा कि अब रमजान है, मैंने रोजा है, मजदूरियां भी कर रहा, मेहनतें भी कर रहा, जिस्म भी टूट रहा, जान भी टूट रही, टांगे कमर जिस्म जवाब दे गया। पर कहता है कुछ खा ले, कुछ सस्ता ले। कहा नहीं, वक्त जब खाने का आएगा तो उस वक्त खाऊंगा। फिर अगली अजीब इम्तहान है ना, खाने के बाद जिस्म निढाल हो गया। आप कहते हैं 5 घंटे सो जा। क्या कैसे सो जाऊं, अभी ईशा होने वाली है। इस एक एक पल का अल्लाह जब देगा ना, खाने के बाद जिस्म निढाल हो गया। क्यों? पानी पी लिया ज्यादा, जिस्म के अंदर थी प्यास, खा लिया ज्यादा, जिस्म में थी भूख। अब जिस्म हो गया निढाल। अब कहते हैं मैं मगरिब कैसे पढ़ूंगा? पहले तो मगरिब की कहानी बता, फिर ईशा के बाद तरावी, और ईशा के बाद थोड़ी सी तरावियों के बाद सारी थकान उतर गई, जिस्म फिर बेहतरीन हो गया। और कहने लगा वाकई था तो सही, वह उसकी करीमी है कि उसने करम कर दिया। एक एक पल का वो करीम जवाब देगा, एक एक पल का हिसाब देगा, एक एक पल की अताएं होंगी, एक एक लम्हे का
अल्लाह की हां कदरदानी है। अल्लाह से बड़ा कदरदान कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? अल्लाह से बड़ा कोई कदरदान नहीं है। खुशकिस्मत हैं आप, अब रब ने आपको चुना है, रब ने आपका इंतखाब किया है, आप खुशकिस्मत हैं। बस बस कितने आज 17 रोजे खत्म हो गए, 16 रोजे खत्म हो गए, 18। वो कहते हैं अल्लाह का नाम ले, पीछे ना जा, आगे चल। क्या करता है? दिल को काबू में लाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। 16 की बात ना कर, 19 की कह ले तो चलो फिर भी कोई ना कोई। 18 हो गए, इंशाल्लाह 12 बचे, कुछ नहीं जो जहां गुजर गए, क्योंकि 15 के बाद रमजान तेजी से गुजरता है, ये एहसास है हमेशा। और 20 के बाद तो पता नहीं चलता, 20 के बाद पता नहीं चलता। आप इंतखाब हैं और आप खुशकिस्मत हैं। बस इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है, इंतखाब कर लिया है, और आपको अल्लाह पाक ने अपनी राहों के लिए कबूल कर लिया है। और आप मश्क कर रहे हैं मुसब्बिबुल असबाब की, कि सारी कायनात की नफी करके इसकी मश्क कर रहे हैं। और जो अल्लाह की राहों में चलता है उसे अल्लाह देता है, देता है, देता है। खाली नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कौन हूं कहने वाला? मैं तो खुद मंगता फकीर भिखारी हूं। खाली नहीं जाएंगे। जिसकी आस पे आए बैठे हैं, जिसकी उम्मीद पे आए बैठे हैं, जिसके नाम पे आए बैठे हैं, जिसकी जिंदगी, जिसके अमल और जिस करीम की करीमी पे आए बैठे हैं, वो देख रहा ना। मैं तो खाली हूं, मैं तो वैसे नहीं दे सकूंगा। जो देने वाला है वो देख रहा है कि ये आया क्यों है। अब आया है तो इंशाअल्लाह खाली नहीं जाएगा। खाली वो देता है और दे के खुश होता है। दिल छोटा ना किया करें, कभी कभी छोटा कर जाते हैं। दिल छोटा ना किया करें। घर भी हो, याद तो घर सबको आता है, क्यों नहीं आता? घर की, अपने वतन की यादें, चाहे वो जंगल वीराना ही क्यों ना हो, वतन वतन होता है, वतन वतन होता है। लाहौर चाहे हजारों साल पुराना शहर हो, हर तरफ रो लाहौर में रौनक मेला हो, पर वतन वतन है, वतन वतन है। याद आता है, दिल चाहता है, जी बाज़ औक़ात मचलता है। यही उस करीम की करीमी है। करीम कहते हैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह आपके लिए। तो कहते हैं फरिश्तों गवाह रहो, फिर मैं इसका अजर खुद हूं। बस हर इबादत का अजर है। ये पढ़ोगे सवाब मिलेगा, ये पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेंगी, ये पढ़ोगे 100 नेकियां मिलेंगी, ये पढ़ोगे पहाड़ के बराबर अजर मिलेगा। और रोजे के बारे में फरमाया, रोजा फरिश्तों सब लिखना छोड़ दो, रोजे का अजर मैं खुद हूं, खुद हूं, खुद हूं। मैं जानू, मेरा बंदा जाने, मैं जानू, मेरा बंदा जाने। बस आगे आखिरी अशरा, और आखिरी अशरे में जो कमाइयां और जो बरकतें और जो इज्जतों के ताज, जो शान शौकतें, आगे आखिरी अशर। थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा दें, मेहनत बढ़ा दें। ये अंदर तोड़ फोड़ है, क्योंकि मालदार हो गया है। अब वो चाहता है कि इनका माल मैं छीनूं। आप बहुत सरमायादार हैं, आप रूहानी मालदार हैं। कहा कि इसका सरमाया मैं छीनूं, किसी तरह हासिल करूं। तो इंशाअल्लाह हिम्मत, हौसला, अजमत और पूरे आज़म के साथ और पूरे इरादों के साथ अल्लाह ने एक रास्ता दिया है। इंशाअल्लाह इन राहों पे चलेंगे और इन राहों से हटेंगे नहीं। अल्लाह से इस्तिकामत मांगेंगे, इस्तिकामत मांगेंगे, इस्तिकामत मांगेंगे।